اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء. میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہیں کہ آج جو 7 جون کو انتخابات کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری. ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، دوسری طرف گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام قائدین کارکنان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم سرخرو ہیں. الیکشن 2026 گلگت بلتستان کے نوجوانان اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ان کی الیکشن مہم جو کہ دن رات جاری رہی، اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو، ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کامیابیاں نصیب ہوئی. نوجوانوں، ماؤں بہنوں نے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں دی، اور ساتھ ساتھ نگر قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گلگت بلتستان کے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 100% نتیجہ دیا اور 2 نشستیں دی. نگر اور دیامر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے. بلتستان اور گلگت ڈویژن روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے تصور ہوتے ہیں، اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلتستان اور گلگت ڈویژن کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سابقہ روایات کو برقرار رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیے. گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جناب چیئرمین، اس باری مینڈیٹ کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا گلگت بلتستان کے نسلوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. یہ مینڈیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، گلگت بلتستان کے عوام کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، یہ 3 نسلوں کا رشتہ چل رہا ہے. آج گلگت بلتستان کے عوام نے بہت سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں کسی دوسری جماعت پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا. یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. جناب چیئرمین، آپ نے یہ ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالی ہے. میں دعاگو ہوں کہ اللہ مجھے اس مشکل ترین ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا کرے. میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دعاگو ہوں خدا بند بزرگ و برتر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ایوان میں موجود ہے، ممبران گلگت بلتستان اسمبلی، عوامی خواہشات اور جذبات کے عین مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے، اہلیت بھی دے اور طاقت بھی عطا فرمائے.
इस हुकूमत बनाने में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, अमीर मुकाम साहब का मशकूर हूँ, हफीज़ुर रहमान साहब और उसकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने जमहूरी उसूलों की पासदारी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। मैं यहाँ पर अलीम खान साहब का भी, उसकी टीम का, मियाँ खालिद साहब का, उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस पूरे सियासी अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक यूनानिमसली अनअपोज्ड इलेक्टेड आपके पास सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम हैं, और ये जो फनामना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पैदा हुआ या इसको कायम किया गया, इस पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और तहरीक इंसाफ हमारी अलीम खान साहब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चेयरमैन, जनाब मेरे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों, मैं थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे खित्ते की क्या अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है, जहाँ पे 7,000 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ये 7,000 ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाहर ज़मीन पर दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्लेशियर आइस का ज़ख़ीरा रखने वाला खित्ता गिलगित बल्तिस्तान है। ये थर्ड पोल मैसिव आइस रिजर्व है, जो वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर वाटर शेड का किरदार अदा करता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 7,000 ग्लेशियर्स इंडस रिवर सिस्टम, जिसको चेयरमैन साहब में और आप सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को फीड करता है और पाकिस्तान के तमाम सूबों की ज़राअत की बुनियादी जो ज़रूरियात है वो गिलगित बल्तिस्तान के 7,000 ग्लेशियर्स पूरा करते हैं। और 26 करोड़ अवाम को जो पानी की सप्लाई है, पीने का जो पानी है, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वक्त जो तवानाई की, बिजली की जो हाइड्रो जनरेशन, जितनी हाइड्रो जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये 7,000 ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कराकोरम, हिमालय, हिंदोकुश इको टूरिज़्म और माउंटेनियरिंग टूरिज़्म के ऊपर आलमी शोहरत रखते हैं। यहाँ के इन ग्लेशियर्स पर, इन हैबिटाट के अंदर नायाब वाइल्ड लाइफ का एक मतलब बहुत बड़ा एक हैबिटाट है इस खित्ते के अंदर, जहाँ पर दुनिया की नायाब तरीन वाइल्ड लाइफ हमारे पास मौजूद। ये हमारी अहमियत। दूसरी तरफ से हम देखें तो दूसरा जो हमारा पोटेंशल है सियाहत का के हवाले से, हम सियाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है। पूरी दुनिया की आबादी गिलगित बल्तिस्तान आना चाहती है। दुनिया जहाँ के तमाम सियाहती मकामात की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशल हासिल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पहुँचने के लिए जो सफ़र की गैर यकीनी सूरत हाल है, ये हम 78 साल में ख़त्म नहीं कर सके। जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए सफ़र की जो सहूलियात हैं उसमें हाइल रकावटों को ख़त्म करके आलमी ट्रेवलिंग स्टैंडर्ड्स फराहम नहीं करते, गिलगित बल्तिस्तान का सियाती पोटेंशल से हम मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। हमें ज़मीनी और हवाई सफ़र दुनिया के लिए सर्टेन बनाना होगा, यकीनी बनाना होगा। हमें सफरी सहूलियात के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अराइवल वीज़े की भी फैसिलिटी देनी होगी, ताकि टूरिज़्म का जो पोटेंशल है ये हार्वेस्ट हो सके। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशंस पर काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम हमें लॉन्च करने पड़ेंगे। बेजा आबादकारी को रोकनी पड़ेगी। रेंज लैंड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। नेशनल पार्क्स के अंदर जो हमारे पास फ्लोरा फाना है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक टूरिज़्म डेस्टिनी के तौर पे इसकी
اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ٹورزم سے جب ہم نکلتے ہیں, مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں. جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے. یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں, بیس میٹلز ہیں, یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں, کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں, یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں, یہاں پر پلیٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں. جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے. یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود ان پوٹینشلز کا آج تک فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں, ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے, لائف سٹاک ہے, فشریز ہے. یہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان کو لائف سٹاک ایریا تصور کرتے تھے. ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا کے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو سپیشیز آئیں گی, جو فصلیں ہوں گی, جو ہمارے پاس پھل فروٹ ہوں گے, جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی جو نسلیں ہیں, یا ہمارے پاس جو فشریز کی نسلیں ہیں, وہ گلگت بلتستان کے نایاب ترین سیکٹر ہیں. اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ون ولیج ون پروڈکٹ, انشاءاللہ تعالی ہم قریب ہم ون ولیج ون پروڈکٹ کا پروگرام لانچ کریں گے, اور ان سارے سیکٹرز کے اندر ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کی دیہات کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تھوڑا سا جغرافیکل سگنیفیکنس پہ بھی بات کریں تو گلگت بلتستان کراس روڈز آف سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشیا مانا جاتا ہے. اس کے بارڈرز سینٹرل ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ساؤتھ ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ایسٹ ایشیا سے بھی ملتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجیب سا خطہ ہے جو 3 ریجنز کو, 3 پیسیفکس کو ملاتا ہے. ساتھ میں چونکہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت جو روڈ لنکیج ہے, یہ ایک سائٹ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا, افغانستان اور تاجکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی. اور چائنا کی طرف سے جو ہم بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں, افغانستان تاجکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ چائنا بارڈر پہ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی. آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے اس سیزنل ٹریڈ کو آل ویدر ٹریڈ ڈکلیئر کرنے میں آپ نے سگنیچرز کی, آپ نے مجھے بھی بلایا تھا, اور آپ کی موجودگی میں یہ سیزنل سے آل ویدر ٹریڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنو پاک ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایز فارن منسٹر اس وقت سائن کیے تھے. وہ سائنو پاک ایگریمنٹ اس وقت سے آج تک چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے, اور یہ دوستی کی بنیاد جو رکھی تھی بھٹو صاحب نے, اسی کا پھل آج تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے, گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے. اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ میں جو سی پیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے. ہم چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں, ان پوٹینشلز کو ہم اپنا ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کریں, اور پی 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 موڈ کے اوپر انشاءاللہ ہم انویسٹمنٹ لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں, اور گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو مشکلات ہیں, ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگلا جو ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے, ہمارا ایریا اور ہماری پاپولیشن 28,000 مربع میل, کے پی کے سے تھوڑا سا ہم کم ہیں, لیکن آبادی بالکل 17 لاکھ ہے. یہ گڈ گورننس کی مثال ہو سکتی. گلگت بلتستان کا صوبہ ریسٹ آف دی کنٹری کے لیے گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا پرائم سبجیکٹ سمجھتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا فاؤنڈیشن سٹون مانتے ہیں. ہم تمام سیکٹرز کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے
उन तमाम सेक्टर्स पे इंशाअल्लाह हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा भी बनाएंगे। ये तो थे जनाब चेयरमैन हमारे पोटेंशियल्स, थोड़े से हमने जिक्र किए हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है हमारे मसाइल की जिस पे बात की जानी चाहिए। अगर हम महज पोटेंशियल्स पे बात करें और मसाइल पे बात ना करें तो फिर नाइंसाफी होगी। हमारा बजट जो इस पर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा हक बनता है वो 258 अरब का बनता है, जो कि वफाक ने हमें हर सूरत हमें देना है, जबकि फेडरेशन की तरफ से आज भी जो हमें रिसेंट जो बजट कमिटमेंट आई है वो 142 अरब की आई है। तो मतलब 100 अरब से भी ज़्यादा की डिफिशेंसी है, जिसको पूरा किए बगैर ये गिलगित बल्तिस्तान के इन जवानों के, इन खवातीन के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने ऑर्गेनिक आपको बाहर निकल के आपकी पार्टी के साथ और दीगर सियासी जमातों को वोट दिया है, तो इन जवानों की होप को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। इनकी उम्मीद के लिए भी, इनकी उम्मीद की बहाली के लिए, और मेरी माओ बहनों ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस सियासी अमल के अंदर अपने आप को शरीक किया और सियासी जमातों को वोट दिए, उनको भी हम किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम इंशाल्लाह ये डेफिसिट बजट हम इंशाल्लाह वफाक से लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो 23 अरब, जबकि हमारे रिक्वायर्ड जो बजट था वो 33 अरब का था। सब्सिडी के मद में हमें 29 अरब रुपए की ज़रूरत थी, जबकि वफाक ने 20 अरब से कम करके 15 अरब दिए, जो कि ज्यादती है। हम चाहेंगे कि फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जो गिलगित बल्तिस्तान का हक है फाइनेंशियल, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इंशाल्लाह वो पूरा करके दे। जी भी के स्टेटस के हवाले से बात ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से बात ना करें तो तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। इंतजामी सूफे का सफर आपके सामने है, ये आगे इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब मेहरबानी करें, जो पाकिस्तान के अंदर जिगर जमाते हैं और मेरी क़यादत भी मौजूद है, कि इंतजामी सफर को अबूरी सूबे तक के सफर तक को हम जल्दी से पूरा करें। इसके लिए हम जद्दोजहद करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा। आपने इलेक्शन के बाद जो मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान का, आपने जिस तरह लड़ा शायद मैं भी इस तरह नहीं लड़ सकता था। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आगे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, 7000 ग्लेशियर्स का किस्सा मैंने सुनाया, इंडस का मैंने किस्सा सुनाया, और जो पानी का की बहुतात है वो सारी कुछ मैंने सुनाई। उसके बावजूद हमारे पास 22 घंटे की लोड शेडिंग है। ये 22 घंटे की लोड शेडिंग और ये पोटेंशियल, ये एक दूसरे को मैच नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कहीं पे हमारी नाअहली है और कहीं पे फंड्स की कमी है। आज भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 54 मेगावाट का प्रोजेक्ट मौजूद है, हरपो पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, हैंजल पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, शकरतंग पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, गवाड़ी मौजूद था जिसको हमारी शायद बदकिस्मती हमसे छीना गया। हम ये कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स को हंगामी बुनियाद पे, डे टू डे की बुनियाद पे हम इसको लेंगे। डे टू डे की बुनियाद, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म की सुस्ती काहिली को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास पावर के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। KIU का 100 मेगावाट है, फंडर के अंदर 80 मेगावाट है, सकारकोई के अंदर 15 मेगावाट है, सोनीकोट के अंदर भी है। इस गिलगित शहर के अंदर ही कम से कम मतलब 200 मेगावाट का पोटेंशियल है। बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, अस्तौर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और दियामर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त हमारे पास
जो रिकॉर्डेड फिजिबिलिटीज बनी है वो 1000 मेगावाट की बनी है, जिसके ऊपर पीपीपी मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। और अच्छा हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO के अंदर 15 मेगावाट है, सोनीकोट के अंदर भी है, इस गिलगित शहर के अंदर ही कम से कम मतलब 200 मेगावाट का पोटेंशियल है। बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, अस्तौर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और दियामर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड फिजिबिलिटीज बनी है वो 1000 मेगावाट की बनी है, जिसके ऊपर पीपीपी मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। और अच्छा हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO वज़ीर आला गिलगित में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का तकरीब से खिताब जारी है। कहा कि हुकूमत साजी में ताउन पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मशकूर हैं। अमजद हुसैन की जानिब से कहा गया कि अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से कहा गया सयाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है। तकरीब से खिताब किया गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के लिए सफरी मुश्किलात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला अमजद हुसैन की जानिब से कहा गया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन 2026 में भरपूर हिस्सा लिया है। सयाहों को सहूलतों की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। सयाहत के हवाले से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आवाम की खिदमत के लिए काम करेंगे, उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। गिलगित बल्तिस्तान मादनियात से भरपूर खित्ता है। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया गिलगित में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का तकरीब से खिताब मकामी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर है। अमजद हुसैन की जानिब से कहा गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी हैं, खिताब भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनकी तरक्की के हवाले से बात होगी। अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अमजद हुसैन की जानिब से कहा गया हुकूमत साजी में ताउन पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मशकूर है। अमजद हुसैन एडवोकेट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ये कहा गया, जबकि सयाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है। ये कहा गया है खिताब में गिलगित में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का ये तकरीब से खिताब गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के सफरी मुश्किलात को दूर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सयाहों को सहूलतों की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। अमजद हुसैन की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। सयाहत के हवाले से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी है, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान मादनियात से भरपूर खित्ता है, इसका फ़ायदा उठाएंगे। अमजद हुसैन एडवोकेट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ गिलगित बल्तिस्तान से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला अमजद हुसैन की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी है, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अवाम की भारी जिम्मेदारी, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत साजी में ताउन पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मशकूर हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया है। अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब